Good morning, dear students. Let's start with our third lecture of Unit 5 of DA Design and Analysis of Algorithm, Amortized Analysis. So in last two lecture, we have seen the three methods of amortized analysis: accounting method, aggregate method, and potential method. Now let's start with our next topic that is tactable and intactable problems. So already in Unit 1, we have seen the order of growth, like what are the different time complexities and order of growth of any algorithm. So if I start with like very first is a constant where time complexity is O of 1. After that it goes with logarithmic O of log n, then linear O n, then n log n, then quadratic, that is n square, cubic, that is n cube. After that, I have added one line because these are the time complexities which is coming under polynomial. And these are the time complexities which are non-polynomial. So in that one, first is coming as exponential, that can be O of k raised to n or 2 raised to n or 3 raised to n and any kind of this. Then next is a factorial where the time complexity is O big O of n factorial. Then super exponential, that is n raised to n or n raised to m. So these are the different order of growth. Now, in a computer science, it actually divides this function into two classes. That is polynomial and second is either non-polynomial या फिर जिसको बोला जाता है exponential function. So first is polynomial, second is exponential, जिसको हम non-polynomial भी बोलते हैं. So in a polynomial, any function that is O of n raised to k, that is it is bounded from above by n and k for some constant k. तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें ये n के ऊपर डिपेंड है एज वेल एज इसके रेज में खाली n रेज टू k होता है, देयर इज नो फैक्टोरियल या फिर 2 रेज टू n ऐसे नहीं आता है. सो इट इज बाउंडेड बाय n रेज टू k. तो जैसे हम लोगों ने देखा कि n या फिर इसमें क्या आ सकता है n स्क्वायर और n रेज टू थ्रू 3 या फिर n log n लाइकवाइज. तो ये सारे आ गए आपके पॉलिनोमियल में. सो दीज आर द सॉरी so these are the examples of that. Okay, but if I talk about a exponential or non-polynomial, so the remaining function apart from this all, whatever the remaining function that is O of 2 raised to n or n factorial or n raised to n or n raised to m, so this all is called as a exponential function. So on the basis of this classification of functions into polynomial and exponential, we have classified the algorithm in two different types. One is polynomial time algorithm and second is exponential algorithm. So polynomial time algorithm is where the time performance is bounded from above by a polynomial function n where n is a size of input, यानी जिसमें कोई भी algorithm के time complexity ये input के size के ऊपर depend होती है और polynomial function भी किससे bound किया जाता है, upper bound n से bound किया जाता है. But exponent function is a time performance which is not bounded from above. There is no upper bound. Okay, there is no bound and from above by a polynomial function of n. So this is called as a exponential algorithm. So depend on this, we can broadly classify the problems into the two classes. कोई भी जो problem उसको हमने दो क्लास में हम उसको divide कर सकते हैं. One is a tractable problem and second is a intactable problem. So tractable problem is a problem that is solvable by a polynomial time algorithm. And here the upper bound is always polynomial. And second is intactable problem, means a problem that cannot be solved by a polynomial time algorithm. And here the lower bound itself is exponential. तो यहाँ पे अपर बाउंड पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे लोअर बाउंड एक्सपोनेंशियल होता है जो पहले ही बहुत हाई होता है. एंड प्रॉब्लम्स जो है ये पॉलिनोमियल टाइम में कोई भी डिटर्मिनिस्टिक मशीन पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो इट इज कॉल्ड एज अ इंटैक्टेबल प्रॉब्लम्स.
So some examples of tractable and intractable problems are like tractable problems यानी जिसका time complexity O of n square, log n में आता है. So you can see like all the almost searching and sorting algorithms you can specify under the tractable problem. So searching an unordered list, sorting a list, multiplication of integers, finding a minimum spanning tree. So these are the examples of tractable problem. And the examples of intractable problem can be like Tower of Hanoi और knapsack problem, या फिर जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है. सो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये आते हैं आपके इंटैक्टेबल के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्टेबल एंड इनटैक्टेबल. सो टैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर इजी क्योंकि उसको हम पॉलिनोमियल टाइम में ऑलरेडी रन कर सकते हैं, लेकिन इनटैक्टेबल प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम algorithm अवेलेबल नहीं है and it require a huge time to solve if we go with a deterministic algorithm. So instead of going with a deterministic algorithm, there are two different algorithm flavors which has been introduced like randomized algorithm and approximation algorithm, जिससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इंटैक्टेबल का वो थोड़ा कम हो सकता है. सो यू कैन गेट अ आउटपुट इन अ रीजनेबल टाइम. So randomized algorithm for a problem is usually a simpler and more efficient than its deterministic counterpart. तो कोई भी प्रॉब्लम का डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिथम के बजाय हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रैंडमाइज. अब एग्जैक्टली डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिथम कैसे वर्क करता है? whatever algorithm you have written, you give a input to that algorithm and it will do some processes or operation on your input, your algorithm, and then it will produce some output. So output as well as running time are function only of a input. तो यहाँ पे अल्गोरिथम या आउटपुट ये जनरेट करने के लिए जो भी टाइम लगता है वो पूरा की पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड होता है. बट वी टॉक अबाउट अ रैंडमाइज एल्गोरिथम, इसमें अल्गोरिथम में एक छोटा वेरिएशन ऐड होता है, दैट इज वी यूज अ रैंडम बिट्स. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ सिक्वेंशियल ऑपरेशन इट गोस विथ अ रैंडमाइज्ड बिट. तो रैंडमली कोई भी इनपुट वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है. सो व्हेन यू गिव अ इनपुट it will generate a random bit and then algorithm will be run and then you will receive a output. So the output or running time are function of a input as well as random bit chosen. तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं होती है, या आपने कौन सा रैंडमाइज बिट सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी डिपेंड होती है. So this is how the randomized algorithm works. So a simple quicksort example is given like without रैंडमाइज एल्गोरिथम हाउ इट वर्क्स. तो हम लोगों ने इसका एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा रहेगा. तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट में जब भी नंबर्स दिए जाते हैं, अगर नंबर्स जो है एरे में अगर उसकी साइज 1 से ग्रेटर है तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट एक्स जो है वो पिकअप किया जाता है और डिपेंड ऑन दैट एक्स वैल्यू पार्टीशन किया जाता है. तो पार्टीशन कैसे होता है, जो भी एरे है उसमें एक्स से लेस जो वैल्यू है वो एक एरे में चली जाती है, एक्स से ग्रेटर जो वैल्यू है वो दूसरे एरे में चली जाती है. मतलब एक एक्स से लेस एक जगह पे, ग्रेटर एक जगह पे. अगेन ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है एंड देन इट रिटर्न द कॉन्सेंट्रेटेड क्विक सॉर्ट where s is less than x and where quicksort with s is greater than 0. तो यहाँ पे वापस ये quicksort मतलब खुद को वापस कॉल करता है रिकर्सिवली with first portion of a array then next portion of a array and this process will goes continuously until you get output. So here pick up an element, पाइवोट एलिमेंट. तो x जो हमने पिकअप किया उसको बोलते हैं पाइवोट एलिमेंट. और इसके बाद हमने क्या किया, एरे को दो पार्ट में स्प्लिट किया एंड रिकर्सिवली वी सॉर्ट द सब एरेज ऑल्सो. तो ये रिकर्सिव प्रोसीजर हो गई. अगर सेम चीज जो है क्विक सॉर्ट की हमको रैंडमाइज मेथड से अगर यूज करनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो वी हैव sorry before sorting we have to again like when the input s is in sorted in an array. यानी इसमें दो दो चीजें कि एक बार हमको अनसॉर्टेड एरे मिला है, कभी कभी हमको क्या होता है सॉर्टेड एरे भी मिल जाता है. सो इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड
सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, ए एल एंड आर, जिसमें एल इज अ लोअर, तो यहाँ पे एल की वैल्यू अगर ये आर से लेस है, तो अगेन वी हैव पिकअप अ वैल्यू एक्स, so that is nothing but a of l value. After that we partition the array को partition किया जाता है, जिसमें हम l और r, ये दोनों l और r मतलब इसमें एक्चुअली मिड और हाई, काफी बार जो है वो ये कॉन्सेप्ट काफी बुक में आपको मिलेगा। तो जिसमें ये वाली वैल्यू लेके और पाइवोट एलिमेंट को लेके क्या किया जाता है, इसको पार्टीशन किया जाता है, और पार्टीशन करने के बाद वापस क्या किया जाता है, क्विक सॉर्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड, where the value from A, L means like either low or mid -1 से लेके A of I+1 to R means high तक इसको क्या किया जाता है, रन किया जाता है। तो इसमें एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n log n क्विक सॉर्ट की, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n square. So this is a traditional algorithm. But if we consider the randomized algorithm, so in a randomized algorithm, if you see here, the distribution is like the time taken is always depend upon a random choices of pivot element, क्योंकि यहाँ पे जो पाइवोट एलिमेंट है इट इज ये रैंडमली चूज किया जाता है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये सीक्वेंस में नहीं आती है, इट इज रैंडमली सिलेक्टेड। सो यहाँ पे ये रैंडम बिट क्या हो गया, पाइवोट एलिमेंट जो चूज करना है इट इज डिपेंड, इट इज अ रैंडम प्रोसेस। So here the time taken is depend upon the how the pivot element is chosen by the random function. अगर उसने रैंडमली फर्स्ट ही बिट चूज कर लिया, तो फर्स्ट बिट चूज किया तो पार्टीशन होने ही नहीं वाला, या फिर लास्ट का बिट चूज कर लिया, या फिर सेकेंड वाला बिट चूज कर लिया एरे में से सेकेंड पोजीशन वाला नंबर, तो एरे क्या होगा, फर्स्ट नंबर खाली एक सब एरे में जाएगा और बचे हुए सारे दूसरे एरे में। तो इसके लिए यहाँ पे रैंडम बिट कैसे चूज होता है उसके ऊपर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होता है। सो हियर द एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम इज n log n and worst case time is O of n square in this case. So here an element is selected randomly, तो x की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडमाइज एल्गोरिथम? सो यहाँ पे दो टाइप्स के रैंडमाइज एल्गोरिथम होते हैं। वेरी फर्स्ट इज अ लास वेगास algorithm and second is a Monte Carlo algorithm. So Las Vegas algorithm जो है, here the output is always correct. इसमें आउटपुट जो है algorithm का ये हमेशा आपको परफेक्ट करेक्ट ही मिलने वाला है। एंड रनिंग टाइम इज अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन रनिंग टाइम हम फिक्स नहीं बता सकते, एवरी रन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डिफरेंट। So it is called as a random. Example is randomized quicksort. And second is a Monte Carlo algorithm where output may be incorrect for with some probability. मतलब जरूरी नहीं हमेशा करेक्ट आउटपुट मिलेगा, कभी कभी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब जैसे अगर 100% हम करेक्ट बोलते तो जैसे 98% या फिर 80% ये प्रोबेबिलिटी में आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो थोड़ा बहुत इनकरेक्ट उसमें हो सकता है। एंड हियर द रनिंग टाइम इज डिटर्मिनिस्टिक, मतलब फिक्स होता है। यहाँ पे रनिंग टाइम ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे रनिंग टाइम ये क्या है आपका हमेशा फिक्स होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है। सो हियर एग्जांपल इज अ रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम फॉर अप्रोक्सीमेट मीडियन। So these are the types of randomized algorithm. आफ्टर रैंडमाइज एल्गोरिथम नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। अभी अप्रोक्सीमेशन यानी क्या कि जब हम बोलते हैं कि अगर किसी ने पूछा कि जैसे आपका रिजल्ट क्या आएगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, बट आप बोल सकते हो, आप क्या बोलते हो कि हाँ 80-85% के नियर बाय जो है इतना परसेंटेज, या फिर CGPA 9.1 और 9.2 तक जा सकता है। सो यू आर गिविंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। So here the approximation algorithms gives you the output which may not be 100% exact, but this can be nearer to the exact. तो ये नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। सो वी नीड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट रेशियो बाउंड, यानी कितना अप्रोक्सीमेशन। जैसे अगर आपको कोई एक एल्गोरिथम दिया है तो उसके प्लस और माइनस में ये कितना बाउंड जो है जिसको आप अप्रोक्सीमेशन के लिए वैलिड पकड़ोगे। जैसे अगर आपको, जैसे हमने बोला कि आपको मार्क्स पूछे,
तो अगर आप क्या बोलोगे कि प्लस माइनस हो सकता है, तो कितना हो सकता है? जैसे अगर मैथ्स का पेपर है, आपने बोल दिया कि अरे 80 मार्क के प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस क्या कि आप बाउंड दे रहे हो कि 80 से -5, 80 से +5, तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो बाउंड हो गया। तो ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम क्या करता है, आपको उसका जो आउटपुट है उसका मिनिमम और मैक्सिमम, ये जो बाउंड है एग्जैक्ट वैल्यू के, उसका रेशियो आपको प्रोवाइड करता है। So we say an approximate algorithm for an problem has a ratio bound of P of n if for any input size n, the cos C of a solution produced by an approximation algorithm is within the factor of that particular bound. So the C hash is a optimal solution. So यहाँ पे बाउंड जो है C/C* और C*/C, इन दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू किसको असाइन किया जाता है, जो आपका बाउंडिंग फंक्शन है उसको वो यूज किया जाता है। सो दिस डेफिनेशन अप्लाइज फॉर बोथ मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम लोगों ने यूनिट 2, 3, 4 इसमें जो जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े हैं डा में, वो कौन से, लाइक ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनामिक्स, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन में आइदर यू गोइंग विथ आइदर मैक्सिमाइज और विथ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए इसमें यूज जो है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। सो हियर द बाउंड ऑफ phi is called p approximation algorithm or 1 plus epsilon approximation algorithm. So where the value of p is always greater than 1, or we can say that the value of epsilon is equal to p minus 1. So the example here given is a vertex cover प्रॉब्लम। वर्टेक्स कवर जो है यूनिट 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि इट इज एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया जाता है जिसमें वर्टाइसेस एंड एजेस होते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वर्टेक्स, कि जिसको अगर आप निकाल दो उस ग्राफ में से तो कोई भी एज नहीं बचेगा, 0 एज बचेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम टू find the vertex cover of a minimum size. So it is an NP hard problem or the optimization version of NP complete decision problem. तो इसको ही कैसे सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के लिए, अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल इजी वे में इन्होंने अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम दिया है कि सी में पहले कोई भी एज नहीं है, इसके लिए सी की वैल्यू 5 हो गई। देन पिकअप एनी एज फ्रॉम ग्राफ, वी कंसिडर इट एज ए डैश। सो जब तक ई डैश की जो वैल्यू है, मतलब एज रिमूव नहीं हो जाता है, तब तक हमको क्या करना है, लेट एनी यू कॉमा वी बी एन आर्बिट्ररी एज ऑफ ई डैश। ग्राफ में से कोई भी एक आर्बिट्ररी एज जो वर्टेक्स यू और वी को ज्वाइन करती है उसको पिकअप करो, और उसको जो है उसको रिमूव करके सी के अंदर डाल दो। तो जैसे आप इसको रिमूव करोगे यू और वी वर्टेक्स को, तो उसके साथ यू और वी को इंसिडेंस होने वाली, उससे कनेक्ट होने वाले जितने भी एजेस है वो भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सो लाइकवाइज यू हैव टू वर्क ऑन दैट। हम एग्जांपल देखेंगे इसका। तो जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, ये वाला ये ग्राफ दिया है जिसमें टोटल 6 वर्टेक्स है, तो हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी एज जो है रेड में ये जैसे उठा लिया या रिमूव किया, तो जैसे ही इन दोनों को रिमूव किया, तो बी से कनेक्टेड जो एजेस थे, जैसे बी से कनेक्टेड ये वाली एज है, ये वाली एज है, ये वाली एज है, और सी से कनेक्टेड दीज आर द 2 एजेस। तो इन दोनों को अगर रिमूव कर दिया है, दो वर्टेक्स को, सो ऑल दिस 5 एजेस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। Okay, after that, if you remove the D and E, obviously this edge is going to be get removed. So this is how the approximation algorithm works. So this is the end of our unit 5. Thanks for watching.